Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I'm Arpita Sharma, your educator, and today we are going to launch a very important course on our YouTube channel, that is Indian Economy Comprehensive Course by me, Arpita Sharma. In this course, we are going to cover different topics, different important topics from both prelims and mains perspective, including the current affairs as well, from the subject of economy for your upcoming UPSC CSE examination. इस कोर्स में हम bilingual course होगा ये. This will be a bilingual course. That means Hindi, English, both languages will be used for explanation. We'll be uploading the class PDFs on our Telegram channel also. क्लास पीडीएफ्स को हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है. एंड ऑल्सो दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग योर प्रीलिम्स एंड मेंस द इकोनॉमी पोर्शन. इट विल हेल्प यू टू मेक योर इकोनॉमी पोर्शन स्ट्रॉन्गर. आपके इकोनॉमी पोर्शन को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इस कोर्स के थ्रू, ठीक है. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, हम वो कवर करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. वी आर गोइंग टू कवर देम along with the current affairs as well and previous year questions. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स. क्लास शुरू करते हैं. आज हम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी सम वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स टुडे, राइट. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो वी आर गोइंग टू कवर, इट्स जस्ट अ ग्लिम्स, वी आर गोइंग टू कवर national incomes important topic, GDP and GNP. Then we are going to cover the important terms in the monetary policy, that is repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, MSF. ठीक है. उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी फिस्कल पॉलिसी. इन फिस्कल पॉलिसी वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज revenue account, capital account, what are different types of deficits. This is your content for today's class that we are going to cover, right. So even the top coaching institutes or academies where you enroll and you give fees and enroll in the batches, this particular course is going to provide you the same amount of content, the same amount of knowledge that you get in the paid classes, in the paid courses for free. तो YouTube चैनल पर, हमारे YouTube चैनल पर अर्पिता शर्मा क्लासेस पर आपको फ्री में ये सभी कंटेंट इकोनॉमी से रिलेटेड आपको मिलने वाला है जो आप पेड क्लासेस में लेते हो, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द क्लास. Okay, before we start the session, here's a small announcement for all of you. As you know that on Feb 20 and 21st, it's a 2-day conclave that Unacademy has launched in the form of Unacademy Summit 2.2. And in this conclave, we have 70 iconic speakers like Deepak Gupta sir, who is UPSC's former chairman, Durga Shakti Nagpal ma'am, who is current IAS officer. Then we have Ajit Ranade sir, chief economist, Aditya Birla Group. Then we have Kailash Satyarthi sir, who is a social reformer, and MPs, politicians, and also we are going to get राजेंद्र प्रसाद सर. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आने वाले हैं आपके यूपीएससी के टॉपर्स एंड द करंट आईएफएस ऑफिसर परवीन कासवान सर. सो इफ यू वांट टू गेट रियल हैंड, फ्रंट हैंड guidance and advice from the incumbent civil servants and also from the former chairman of UPSC, then you can register to this summit for free today. I've given you the link in the description box and also in the chat box. Click on that link and then directly register. And please, it's a summit which is going to change your preparation, it's going to change your strategy, it's going to change your thinking about UPSC. कल से ये summit start हो रहा है, 10 बजे morning में start हो जाएगा. आज के आज register कर लीजिए. Click on the register button on the link. क्लिक करें लिंक के ऊपर, रजिस्टर बटन पे क्लिक करें और रजिस्टर करें इस इम्पोर्टेंट समिट में जो कि अनअकैडमी कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है. तो जल्दी से अभी के अभी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, रजिस्टर नाउ एंड देन sit in the summit, book your seat in the summit for free. So let's start with the class today. क्लास शुरू करते हैं अपनी. तो डेली ये जो क्लास होगी आपकी, डेली 8 PM पर हुआ करेगी. डेली दिस क्लास विल बी अपलोडेड एट 8 PM. यू कैन वॉच दिस क्लास एट 8 PM. ये आपका फिक्स टाइम रहेगा, ठीक है. एंड विद इन 20 क्लासेस वी आर गोइंग टू कवर ऑल योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स फॉर द प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन. 20 क्लासेस के अंदर हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे प्रिलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के अंडर, ठीक है. तो ये 8 PM रोज आप इन क्लासेस को वॉच कर सकते हो ऑन आवर यूट्यूब चैनल Arpita Sharma classes. Let's start with national income. When we talk about national income, we are going to study national income separately, but today we are understanding basic terms in economy. आज हम कुछ basic terms economy में समझने वाले हैं, ठीक है. तो in national income, the first basic term that we are going to understand is GDP, which is gross domestic product.
So what is GDP? GDP is the total value of goods and services. It's a total value of goods and services produced, underline total value, ठीक है, produced inside the territory of India. इंडिया के, भारत के टेरिटरी के अंदर अंदर, ठीक है, भारत की रेखा के अंदर अंदर जो भी गुड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सभी की जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु प्रोड्यूस्ड इट, भले ही फॉरेनर ने प्रोड्यूस किया हो, भले ही किसी इंडियन ने प्रोड्यूस किया हो, irrespective of the fact of who produced it, that total value is GDP, that is gross domestic product. Okay, domestic word means that it is being produced inside the territory of India. So total value of money, final value of goods and services produced in economic territories of a country in a given year, in a particular year, 10 साल का नहीं, 1 साल का, in a given particular year, it is your GDP, that is gross domestic product. Okay, for example, in a given year, let's say 2020, in the economy, ठीक है, हमारी economy में, हमारी country में, in our country, there were foreigners also, there were Indians also, right, and total goods and services that they produced, ठीक है, the total value was, let's say, रुपीज 80 करोड़, ठीक है, सो दैट विल बी आवर जीडीपी, वो हो जाएगा हमारा जीडीपी, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज जीएनपी. अब नेक्स्ट टर्म की तरफ देखते हैं जो कि है आपका जीएनपी, विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. So here it is not territory specific. ये difference आपको याद रखना है prelims के लिए. For prelims you have to remember what is the minor difference between GDP, GNP. GDP के अंदर तो total value of goods and services should be inside the territory of India, which are produced inside the territory of India. But in GNP it is not territory specific. Okay, so total value of goods services produced by people of a country. एक देश के जो नागरिक हैं, लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर गिवन ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका जो टोटल वैल्यू है वो जीएनपी में है, एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो और इन द कंट्री ऑल्सो. सो इट इज नॉट टेरिटरी स्पेसिफिक. कंट्री के बाहर मान लीजिए कोई इंडियन है जिसने बाहर कोई गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस किए, तो उस वैल्यू को भी हम अकाउंट करेंगे जीएनपी में, ठीक है. सो जीएनपी इज लेसर दैन जीडीपी, दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. Consider the following statements. India's GNP is lower than GDP. GNP is national income according to which IMF ranks nations of world in terms of volumes at purchasing power parity. In India, national income is calculated at market cost and constant prices. Which of the above statements is or are correct? So just now we have studied that India's GNP is lower than the GDP, right? So we can eliminate D option. हम D option को eliminate कर सकते हैं, ठीक है. Then now over here, the next statement says GNP is national income according to which IMF ranks the nations of world in terms of volumes at PPP, that is purchasing power parity. So this statement is absolutely correct. ये statement correct है, तो first statement is also correct, second is also correct. GNP is the national income, ठीक है, जिसके हिसाब से IMF जो है nations को PPP के context में map करता है या फिर उसको parameter के basis पे judge करता है. Now the third statement is saying in India national income is calculated at market cost and constant prices. So that is also correct. So correct answer is C, that is statement 1, 2, 3 all are correct. So over here we should know that this particular GNP, ठीक है, this is always lower than its GDP. How? The question is how. ऐसा क्यों होता है? और the question is why. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, why is it so? और how is it so that GNP is lower than GDP? So see, the normal formula is, normal जो formula होता है GNP का वो क्या होता है? GNP is equal to GDP plus the income from abroad. Just now we have studied that it is not territory specific. हमने अभी अभी पढ़ा ना कि GNP जो है वो territory specific नहीं होता है, ठीक है. So GDP plus income from abroad, but it becomes GNP is equal to, write it down over here, it becomes that GNP is equal to the GDP plus minus income from abroad, minus income from abroad, right? That is GDP minus income from abroad, GDP minus income from abroad, ठीक है. So over here in case of India it is GDP minus income from abroad. This means India's GNP is always lower than its GDP.
why I am minusing it, why I am subtracting it? Because see, income from abroad, it may be negative or it may be positive. Income from abroad जो होती है नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर जितनी इनकम हो रही है बाहर एक इंडियन की, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, उससे ज्यादा उसके खर्चे भी हो सकते हैं. इफ अ पर्टिकुलर इंडियन इज collecting revenue of, let's say, 100 rupees from abroad, it might be the case that he is spending more than the income, more than he is receiving. The expenses can be 120, so the income from abroad will be in minus, will be in negative. मान लीजिए 100 रुपए की कमाई हो रही है एक इंडियन की बाहर से, हो सकता है उसके खर्चे 120 हो, ठीक है, तो यहाँ पर -20 का उसका इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना. तो इसलिए उस पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कहेंगे कि जीएनपी जो होता है जीडीपी से कम ही होता है. सो ओवर हियर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट मे टर्न आउट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इन इंडियाज केस इट हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव. हमारी केस में तो हमेशा नेगेटिव रहता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, फॉरेन लोन्स एटसेट्रा. सो इट मीन्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंडियाज जीडीपी टू कैलकुलेट इट्स जीएनपी. इंडिया का जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जीडीपी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. दैट इज वाई इंडियाज जीएनपी इज लोअर देन दी जीडीपी, दैट यू हैव टू रिमेंबर. मान लीजिए आप फॉरेन में गए, you went to the nation abroad and your income was 100 rupees, but because of foreign loans, ठीक है, उससे क्या हुआ, आपके जो एक्सपेंसेस हो गए वो 180 हो गए, तो -80 का आपका इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया ना, ठीक है, because you have to pay the foreign loans also. So that is why GNP will be lower than GDP. This is the reason. Okay. Now let us come to the important terms in the monetary policy. Monetary policy के important terms समझ लेते हैं, ठीक है. This is again very very important. So the important terms in the monetary policy are, first is the repo rate. What is a repo rate? Repo rate is also known as the repurchase option. Repo rate अभी जो current है हमारा वो 4.4% है. इसको repurchase option बोलते हैं because here the bank repurchases securities deposited with RBI at repo rate. Okay, so it's a rate by which RBI gives loans to other banks. ये repurchase option जो होता है ना repo rate, ये वो रेट है जिस रेट पे RBI जो है वो दूसरे बैंक्स को लोन्स देता है, ठीक है, तो उसे हम रेपो रेट बोलते हैं. तो बैंक क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को रीपरचेज करेंगे आरबीआई से रेपो रेट के ऊपर ही, ठीक है, एज पर दी रेपो रेट ओनली. Always remember, loans given to other banks by RBI, the rate is known as repo rate. Then we have ये तो आपका रीपरचेज ऑप्शन हो गया जो बैंक्स के पास होता है. इसकी वजह से बैंक अपने सिक्योरिटीज जो कि आरबीआई के पास डिपॉजिटेड है ना, उसको रीपरचेज कर सकती है रेपो रेट के थ्रू एट द रेपो रेट, ठीक है. अब बात आती है हमारी नेक्स्ट टर्म की, दैट इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट करेंटली इज अगेन 4%. रेपो रेट इज 4.4, रिवर्स रेपो इज 4. So RBI at times borrow from banks at rate lower than repo rate. अब RBI क्या करता है, कभी कभी बैंक से, यहाँ उल्टा है, here it is reverse. Now here RBI is borrowing from the banks at a rate which is lower than the repo rate, and that is reverse repo rate. जब RBI borrow करती है बैंक से, ठीक है. Then we have CRR, that is the cash reserve ratio. So what is cash reserve ratio? It's the percentage of liquid reserves each bank have to keep. liquid reserves मतलब जो easily, for example in cash, ठीक है, कैश है तो वो liquid reserves हो गए जो easily आप dispose कर सकते हो, ठीक है. So it's a percentage of liquid reserves each banks have to keep as cash reserve with RBI in their current accounts corresponding to deposits they have. जितना deposits उनके पास है savings में, current में जो वो पैसा रखते हैं RBI के पास store रखते हैं, वो liquid reserves होते हैं जो emergency में use होते हैं. तो जो percentage होगा उसका corresponding to their deposits, the percentage of these liquid reserves kept by banks to the RBI with the RBI in the current account will be cash reserve ratio. उसको हम बोलेंगे cash reserve ratio, ठीक है. यहाँ तक point clear हो गया आप लोगों को? चलो, very good. Now next current CRR is 3%. Then we have MSF. MSF क्या होता है? It is marginal standing facility and currently it is 5.4%. Okay. So MSF जो है, it is the rate at which scheduled commercial banks could borrow money overnight from RBI against approved securities. तो यहाँ पर ये जो scheduled commercial banks होती हैं ना, ये वो रेट है जिसपे scheduled commercial banks RBI से जो है वो पैसे बोरो कर सकती है ओवरनाइट, ठीक है. उनको पूरा ड्यू प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है. ओवरनाइट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ऑफ दीज कमर्शियल बैंक्स. यानी कि गिरवी रखनी पड़ती है उन्हें अपने सिक्योरिटीज आरबीआई के पास, तब उन्हें ओवरनाइट ये पैसा मिलता है, ठीक है. तो उस रेट को हम बोलेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी.
ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। सो व्हाट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक? ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? राइट इट डाउन। These are those banks which are included in the second schedule of the RBI Act of 1934. They carry out normal business of banking, जैसे कि डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना, बाकी की जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक, अलाहाबाद बैंक एटसेट्रा. These are scheduled commercial banks. Okay. Then the borrowing limit of MSF is 2%. ये जो scheduled commercial banks की borrowing limit होती है वो 2% होती है of the net demand and time liabilities. Okay, current rate जो है वो 5.4% है. Now let's talk about the bank rate. What is a bank rate? It's a long term rate. ठीक है, 5.4% है current. It's the higher rate, that is 1% higher than the repo rate. ठीक है, here repo rate is 4.4. So bank rate हमेशा 1% higher होता है. So it will be 5.4. Always remember. And it is the rate charged by RBI when it gives loans to commercial banks. जब RBI commercial banks को loans देता है ना, तो वो जो rate charge होता है उसका हम बोलते हैं that is known as your bank rate. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. एंड दिस बैंक रेट ना, इट अप्लाइज टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स. ये सारे कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल होता है. ओके, नाउ व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक. इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज योर आरबीआई. Now the next rate is SLR, that is the statutory liquidity ratio. ठीक है, so present SLR is 18.5%, it's the highest. So over here you will see statutory liquidity ratio. We all know that it's a percentage of liquid reserves. I've told you what are liquid reserves. Liquid reserves are cash. So it's a percentage of liquid reserves that each bank has to keep as cash reserve with themselves corresponding to the deposits they have. देखो यहाँ पर आप देखोगे CRR क्या था? The liquid reserves which banks has to keep as cash reserve with RBI, not with themselves. RBI के current account में होंगे, but यहाँ SLR में ना the cash reserve as compared to their deposits that they have to keep it with themselves. Okay, तो यहाँ पर banks have to keep CRR with RBI but SLR with themselves. ठीक है, but ये locked होते हैं. ये नहीं कि अपने पास बैंक के पास रखे हैं तो कभी भी यूज कर लिया, नहीं. It will be locked. Only RBI की परमिशन से ही इस पैसे को यूज किया जा सकता है. ठीक है, RBI's permission is required to use this money. So that is SLR. Okay, then we have CRAR, that is capital to risk weighted assets ratio, that is CRAR. So CRAR, the higher the CRAR of bank, the better capitalized it is. It is ratio of bank's capital to its risk. बैंक की जो capital है ना, उसका ratio उसके risk से comparison में देखा जाएगा, वो CRAR है. So basically you can say it is the ratio of bank's capital to its risk weighted assets and current liabilities. And this ratio is used to secure depositors and to increase the efficiency and stability of financial systems. क्योंकि जितना ज्यादा high CRAR होगा उतनी ज्यादा capital है तो बैंक ज्यादा capitalized होगी. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया सभी को. तो CRAR का फॉर्मूला भी होता है, it is, write it down, CAR equals the tier 1 capital plus the tier 2 capital whole divided by the risk weighted assets. ओके, जितने भी रिस्की एसेट्स हैं उनसे डिवाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ हियर व्हाट इज टीयर 1 कैपिटल? अब ये टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल क्या है? सो टीयर 1 कैपिटल इज आल्सो नोन एज कोर कैपिटल. टीयर 1 कैपिटल को हम कोर कैपिटल भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा. दिस कंसिस्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ बैंक, द रेवेन्यू रिजर्व ऑफ द बैंक एंड ऑल्सो द इंटेंजिबल एसेट ऑफ द बैंक. ठीक है, तो ये परमानेंटली अवेलेबल होता है, हमेशा ये बैंक के पास रहता है. इट इज परमानेंटली अवेलेबल टू बैंक. ठीक है, देन व्हाट इज टीयर 2 कैपिटल? दिस आल्सो कैन अब्सॉर्ब द लॉसेस. तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है? टीयर 2 जो कैपिटल होता है इसमें अनऑडिटेड रिजर्व्स आते हैं, अनऑडिटेड अर्निंग्स आती हैं, जर्नल लॉस रिजर्व्स आते हैं यहाँ पर. ठीक है, एंड व्हाट आर रिस्क वेटेड एसेट्स? सो दीज एसेट्स आर यूज्ड टू फिक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट शुड बी पोसेस्ड बाय बैंक्स टू लोअर द इंसॉल्वेंसी रिस्क. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो व्हाट इज द करंट CAR? करंट CAR इज 8%. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. करंट CAR हमारा 8% है एज पर RBI. ठीक है, चलो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फिस्कल पॉलिसी. अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द
फिस्कल पॉलिसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी. ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? इट इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. ठीक है. फिस्कल पॉलिसी इज पॉलिसी ऑफ एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो हियर बजट, टैक्स, सब्सिडीज, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसीज ओनली. सो फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर. ठीक है. और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है फिस्कल डेफिसिट, जो हम पढ़ेंगे अभी फर्दर क्लासेस में. ठीक है. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले इनकम और एक्सपेंडिचर. देखो उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. मान लीजिए सपोज माई टोटल रेवेन्यू इज ₹100. टोटल रेवेन्यू मीन्स माई टोटल अर्निंग इज ₹100. आई एम टेलिंग यू कि मेरी टोटल अर्निंग ₹100 है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको अगर इसका ब्रेकअप दिखाऊं, इफ ₹100 हैज टू बी ब्रोकन अप इनटू पार्ट्स, आई विल से दैट व्हाटएवर बिजनेस आई एम डूइंग, फ्रॉम दैट माय टोटल अर्निंग विल बी ₹100, आउट ऑफ विच ₹20 वर्थ ऑफ गुड्स आई एम सेलिंग ऑन कैश एंड ₹80 वर्थ ऑफ गुड्स आई एम सेलिंग ऑन क्रेडिट. यानी कि ₹20 का तो मैंने सामान जो माल है वो कैश में बेचा, बट ₹80 का ना उधारी पर बेचा है, यानी कि क्रेडिट पे बेचा है. तो नाउ हियर आई मे और मे नॉट गेट बैक माई क्रेडिट. हो सकता है ना कि पैसा ना वापस मिले मुझे, सामान तो ले लिया लोगों ने, उधारी ना चुका सके. ठीक है, हो सकता है. तो मेरी टोटल कैश सेल विल बी 20% ओनली. टोटल ₹100 इज रेवेन्यू, देन 20 इज कैश रेवेन्यू. सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट 20%. कैश सेल हमारी टोटल सेल की 20% हुई है. ठीक है. सो हियर लेट्स से द डेफिसिट इन इकोनॉमी, दिस वाज द पर्सनल एग्जांपल ऑफ बिजनेस. नाउ लेट्स से डेफिसिट इज देयर इन इकोनॉमी. मान लीजिए डेफिसिट है इकोनॉमी में. ठीक है. और वो 20 का है, ₹20 का है. यानी कि इट शोज, दैट मीन्स इट शोज दैट हाउ मच द गवर्नमेंट हैज बोरोड. हम गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया. अगर डेफिसिट ₹20 का है तो गवर्नमेंट ने ₹20 बोरो किए हैं. नाउ लेट्स से डेफिसिट इन इकोनॉमी इज ₹20 एंड जीडीपी इज 200. So if we take out the calculate the ghata or the loss or deficit in terms of percentage, 20 divided by 200, that is the GDP into 100. That means in the economy right now there is 10% deficit. इकोनॉमी में अभी फिलहाल 10% का डेफिसिट है. ठीक है, हम ये बोलेंगे. तो डेफिसिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. व्हाट इज योर डेफिसिट? डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर. सो इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर देन इट इज सरप्लस. When income is less than expenditure, that means deficit. So when government is in deficit, it means that to fulfill their expenditure, जो government के खर्चे हैं उसको fulfill करने के लिए एक particular year में whatever amount of money they need to spend, that is certain amount of money that government is spending from their own earnings, that is taxes, and extra spending, that is borrowings from the market, that borrowing will be known as deficit. मान लीजिए खर्चा जो भी हुआ है टोटल एक ईयर में गवर्नमेंट का, उसको वापस पे ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट अपनी अर्निंग्स में से यूज कर रहा है पैसा, यानी कि टैक्सेस के थ्रू, और कुछ पैसा बोरो कर रही है गवर्नमेंट. तो वो बोरो जो हो जाएगा वो डेफिसिट में आ जाएगा. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिसिट. सो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग. सो हियर इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज. यानी कि जो टोटल रिसीट्स है ना, इसमें से बोरोइंग्स हटा देंगे. ठीक है, तो ये हमारा टोटल फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं. देखो इनकम और एक्सपेंडिचर जब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट मेंटेन्स 2 अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. In the revenue account, further we have 2 parameters, daily income and daily expenditure. डेली इनकम विल बी, गवर्नमेंट की डेली इनकम कहाँ से आएगी? चलान्स कटते हैं उससे आएगी. एंट्री फी, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू विजिट कुतुब मीनार और ताजमहल, राइट? द एंट्री फी दैट यू पे, दैट विल बी डेली इनकम. ओके, डेली टूरिस्ट जाते हैं. देन टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, दैट इज ऑल्सो डेली इनकम ऑफ गवर्नमेंट, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट. दैट मीन्स डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ द कंट्री में जो पैसा जा रहा है वो रेवेन्यू अकाउंट से निकल रहा है. ठीक है, इन द डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ द कंट्री द मनी दैट इज बीइंग यूज्ड, इट इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम द रेवेन्यू अकाउंट. Then daily expenditure, that is salary to IAS officers, police officers, cleaning or maintaining roads, maintaining bridges, dams. These will be daily expenditures. Now here interest payment will also be part of daily expenditure. Now let's understand what are interest payments. देखो जब गवर्नमेंट बोरो करती है ना मनी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू भी बोरो करती है मनी. So what is this government security? It's a piece of paper that government issues to the general public that we need ₹1,000. For example, government is saying that we require ₹1,000. If you give us ₹1,000, we will give you interest at the rate of 7% every year for the next 10 years. अगर आप हमको ये पैसा देते हो जो हमको चाहिए, तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हो हमसे, तो हम आपको नेक्स्ट 10 साल तक
हर साल आपको इंटरेस्ट देंगे, आपने जितना पैसा हमें दिया है एट द रेट लेट्स से 7%, तो हर साल तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। मान लीजिए आज से 5 साल पहले जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू उन्होंने पैसा उठाया मार्केट से, उसके हर साल इंटरेस्ट पेमेंट तो जा रही है, तो दैट इंटरेस्ट पेमेंट विल बी योर डेली एक्सपेंडिचर। वो खर्चा ही तो हो रहा है गवर्नमेंट का, डेली एवरी ईयर गवर्नमेंट इज पेइंग ऑफ दिस इंटरेस्ट while from the government securities that they issued to the people. Okay, then coming to capital account. What is capital account? Now capital account में ना क्या होता है, once in a while expenditure और incomes यहाँ पर आते हैं. So for example, if we look at the expenditure in capital account, for example creating roads, so it's a once in a while expenditure ना, एक बार ही खर्चा होता है roads बनाने में, ठीक है। एंड इनकम में आ जाएगा सेलिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नाउ जब आप PSUs, जो कि हाल ही फिलहाल गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स PSUs आल्सो, राइट, इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू मस्ट हैव सीन दैट गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स PSUs। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग ओवर हियर, दैट दिस income that government is generating from selling public sector undertakings, it's a part of non-debt creation or non-debt income. Then income from loans also. Now government हर साल loans लेती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उनका इनकम ही हो जाएगा, बट ये डेट क्रिएट कर रहा है। इट इज दिस टाइप ऑफ इनकम दैट इज टेकिंग लोन्स फ्रॉम पीपल और लोन्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज। गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग डेट, बट बाय सेलिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट इज नॉट क्रिएटिंग डेट। यहाँ पर गवर्नमेंट डेट क्रिएट नहीं कर रही है। तो इन इनकम ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, डेट इनकम एंड नॉन डेट इनकम। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। Now coming towards the different types of deficits in the economy. अब अलग अलग तरीके के डेफिसिट्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। 3 basic types of deficits that we are going to study is, first is revenue deficit. So revenue deficit means to meet the day to day expenses, underline the word day to day expenses, रोज के खर्चे जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनको पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट अपने रिसीट से उनको नहीं पूरा कर सकती तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। डेली इनकम से अगर खर्चे नहीं निकल रहे गवर्नमेंट के तो बोरो करना पड़ेगा, वो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 100 बट रेवेन्यू रिसीट इज जस्ट 95 रुपीज, तो 5 रुपीज हैव टू बी बोरोड ना, जो डिफरेंस आएगा वो बोरो करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। एंड इफ इट इज हाई देन इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, बाय डिफिकल्ट सिचुएशन की आपका भैया डे टू डे खर्चा ही नहीं निकल पा रहा, डे टू डे खर्चे के लिए अगर उधार लेना पड़ रहा है तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। Now revenue was to meet day-to-day expenses, daily के खर्चे निकालने के लिए। Fiscal deficit is total amount of money borrowed by government in one financial year to meet extra expenditure commitment in revenue and capital account. Both देखो, revenue और capital दोनों ही अकाउंट में जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको खत्म करने के लिए पूरे एक साल में गवर्नमेंट जो बोरो करती है मनी, वो फिस्कल डेफिसिट का पार्ट हो जाता है। मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का मिला के जो टोटल खर्चा है उसमें से रेवेन्यू रिसीट को निकालो प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को निकालो। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट मतलब जो डेट क्रिएट नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दिस इज नॉन डेट रिसीट, ठीक है, जो कोई उधारी क्रिएट नहीं कर रही है आपके ऊपर। सो दैट विल बी योर फिस्कल डेफिसिट। फॉर एग्जांपल आपके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20, इनको प्लस कर दो, माइनस आपका रेवेन्यू रिसीट आ रहा है 95, डे टू अर्निंग 95 रुपीज है, प्लस जो आपने नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है, यानी कि आपने मान लीजिए सड़क बनाई उसमें से टोल कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, डेट तो नहीं क्रिएट हो रहा आपके ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच रहे हो, तो वो 10 हो गया। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो 15 आएगा दैट विल बी योर फिस्कल डेफिसिट, वो आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। सो इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट पेमेंट क्या है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट लेट्स से इट्स 15 रुपीज, इंटरेस्ट पेमेंट 12 जा रहा है, सो 3 विल बी योर प्राइमरी डेफिसिट। इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन बिकॉज हियर गवर्नमेंट इज बोरोइंग फॉर पर्पज ऑफ पेइंग देयर इंटरेस्ट कमिटमेंट। पास्ट के जो लोन्स लिए हैं उसको तो प्रिंसिपल तो पे ऑफ हुआ नहीं है, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, उसके लिए भी बोरो करना पड़ रहा है और नया लोन लेना पड़ रहा है। मतलब पहले के लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस इंटरेस्ट के लिए भी तुम नया लोन ले रहे हो, तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट है, जो कि एक क्रिटिकल सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए। सो इट शोज दैट फ्रॉम टोटल बोरोइंग्स ₹12 हैज बीन यूज्ड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग अ गुड अमाउंट। ये जो प्राइमरी डेफिसिट है इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, दैट गवर्नमेंट इज नॉट इवन एबल टू फुलफिल इट्स लोन इंटरेस्ट कमिटमेंट। That is the situation right now. So that is primary deficit.
उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं. सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास. दिस वाज योर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स क्लास, राइट. दिस वाज द फर्स्ट क्लास, क्लास 1 थी, जिसमें हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स को पढ़ा है. 30 मिनट्स की ऐसी क्लासेस डेली होने वाली हैं. ऑल्टरनेटिव डेज पे भी हो सकती हैं 8 PM. ठीक है. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर टू दिस अनअकैडमी समिट 2.2. द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फटाफट से अभी के अभी रजिस्टर कर लीजिए, because it's going to change your, transform your CSE preparation journey. If you really enjoyed the class, do let us know in the comment section. Thank you.